Hello everyone, thank you so much joining the CISSP class, and today we are going to cover the proactive measures and reactive measures. Again, we are already discussing the threat modeling. Okay, so it falls under your threat modeling part. Okay, so let's suppose just give you an example. This is the company ABC Group. Okay, ABC Group, and these are your part of threat intel part, threat management part, and majorly they are the let's suppose compliance and they are the audit teams. It's under falls under your compliance. Okay, so they have lots of clients. They are the ABC group is managing multiple financial company and taking responsibility for mitigating their risks, auditing their environment to secure the strategy from a threat modeling perspective. Okay, so they just receive a recent incident that few of the attacks is happening with they have launched one of the new applications, and that is, let's suppose, one of the online banking site. Just give you an example. Okay, online, let's suppose any of the payment gateway or any of the, let's suppose, net banking site. Okay, in the particular bank. So they just recently a few of the things it is already under the development phase, and few of the channel they have already put it into publicly to people are they can need to understand that how it is working in the real time scenario. It won't work. For a example basis, I'm just giving to a clarity to understand the proactive measures and reactive measures for your better clarity. Okay, so just understand how it is work. Okay, let's discuss what is proactive and reactive. Proactive is always before put into the before live with the particular applications. You can call this as in the development dev environment, and reactive measures always work that it is already in the dev, so already in the live or already people are using. So let's little bit describe and understand in a more detail how it is work. Okay, so proactive measures are actions taken in advance to prevent or minimize the impact of potential threat. तो लेट सपोज अभी हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, एक नेट बैंकिंग का वो एप्लीकेशन है। तो जब वो डेवलपमेंट लेवल पे रहता है ना, जो डेवऑप्स पे रहता है या यूएटी पे रहता है, उसको जो भी कोड वगैरह डेवलपमेंट हो रहा है, तो फ्रॉम ए थ्रेड मॉडलिंग पार्ट उसको लाइव जाने से पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं कि क्या क्या थ्रेड है, किस टाइप का अटैक हो सकता है। एंटायर थिंग वी कैन एनालिसिस बिफोर इट पुट इनटू योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दे फोकस ऑन प्रिपेयरिंग सेपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटा बिफोर एन एक्चुअल इंसिडेंट occurs। तो इसको अटैक होने से पहले वी हैव डू ऑल दोस एनालिसिस। दिस मेजर्स आर लाइक बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस टू डिटर एंड डिस्क्लोज अटैकर। प्रोएक्टिव मेजर्स इंक्लूड, सो आप इसको देखो कैसे काम करता है प्रोएक्टिव मेजर्स। ठीक है, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड असेसमेंट, सो पीरियडिकली रिव्यूइंग एंड एनालिसिस सिस्टम, जो हम लोग का प्रोएक्टिव मेजर्स के अंडर आता है। ठीक है, नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस टू आइडेंटिफाई vulnerability एंड वीकनेसेस। थ्रेड मॉडलिंग, सो ये थ्रेड मॉडलिंग इट इज ओनली सब डोमेन्स, बट इसको आप खाली अभी प्रोएक्टिव मेजर्स को फोकस करो। ठीक है, एंटिसिपेटिंग पोटेंशियल थ्रेट बाय एनालाइजिंग how attackers might target systems and identifying vulnerabilities they could exploit। okay, सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये तो हम लोग का मतलब डेफिनेटली ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज हमेशा अटैक आपका, लेट सपोज इफ समवन ए अटैकर एंड समवन ट्राई टू एक्सप्लॉइट इन योर ट्राई टू एंटर इन योर एनवायरनमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक काम उसको बहुत ईजी रहता है टू सेंड ए फिशिंग ईमेल एंड ट्राई टू बाईपास योर एंड यूजर। ठीक है, अगर मुझे उसको अगर कोई फायरवॉल बाईपास करना है, वेब बाईपास बाईपास करना होगा, या हनीपॉट बाईपास करना होगा, या एनी ऑफ द अकामाइज, तो इट इज टेकिंग मच टाइम। बहुत सारे एफर्ट एंड टैक्टिस जाता है। अगर मैं कोई सिंगल यूजर को अगर टारगेट करता हूँ या मल्टीपल एंड यूजर को टारगेट करता हूँ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सेस टू द ऑल दिस एनवायरनमेंट, एंड फॉर ए एनवायरनमेंट दे आर द ऑथराइज यूजर, राइट। सो इट इज मतलब ये इजी रहता है टू compromise user any end user। ठीक है, that is the reason educating employee and user about cyber security best practices to reduce likelihood for, of human errors that could lead to the security breaches, right। अगर कोई phishing email भेजता है, कोई click कर देता है, so it will be going to compromise and have for the entire organization's reputational risk, business risk and entire thing। ठीक है,
सोर्स कोड प्रैक्टिसेस क्या होता है? डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस विद सिक्योरिटी इन माइंड टू प्रिवेंट कॉमन vulnerabilities, ठीक है? एक्सेस कंट्रोल एंड एन्क्रिप्शंस, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, अनऑथराइज्ड कंट्रोल एंड इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा, ठीक है? Patching and updates, regular applying software pages and updated fix to known vulnerabilities and protect against potential exploit. ये exploit होने से पहले ये सारा चीज they can more focusing on before putting the production environment or putting the internet, ठीक है? Not intranet, internet, ठीक है? So हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो ये टीम क्या करता है, वही फाइनेंशियल बैंक है, तो दे जस्ट डिफाइन द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, एंड इन प्रोएक्टिव दे आर फोकसिंग बिफोर, जो जो अभी डेवलप पे है सारे पे ये फोकस करते हैं। लेट्स डिस्कस द रिएक्टिव हाउ इट इज वर्क, ठीक है? रिएक्टिव मेजर्स आर एक्शंस टेकन इन द रेस्पॉन्स टू एन एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स और ब्रीच। दे फोकस ऑन mitigating the damage, recovering from the incidents and preventing future occurrence, ठीक है? तो ये क्या होता है, अगर ये साइबर अटैक होने से पहले या बिफोर गो टू द लाइफ, ये डेवऑप्स लेवल पे फोकस होता है, प्रोएक्टिव मेजर्स, ठीक है? बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिव ना, जब एक बार अटैक हो जाता है, so what are the things we need to more focusing on? Being a cyber threat intelligence, being a cyber threat intel team, or being a defensive team, it could be a SOC team, NOC team, whatever it is comes under, right? बीइंग ए साइबर स्ट्रेटेजी, आप उसको रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो मेजर एंड क्रिटिकल पार्ट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस और बुल टीम्स, ओके? विल डिस्कस व्हाट इज द रेड टीम, जो हम लोग का मॉड्यूल आएगा 6th और 5th, वी कैन डिस्कस एंटायर थिंग। सो आप खाली ये सोचो, जब भी आप डिफेंस लेवल पे रहते हो, बिकॉज एक ऑफेंसिव होता है और एक डिफेंसिव रहता है, तो जब आप डिफेंड करते हो ना किसी भी अटैकर को, जो बाहर से ही अंदर आ रहा है, आप उसको डिफेंड करते हो, तो व्हाट कुड बी योर स्ट्रेटेजी to respond and mitigating to the have and exploit. So यहाँ पे कैसा होता है, reactive measures are akin to firefighting, ठीक है? Addressing an incident that is already happening. Reactive measures include, तो already अगर attack होता है, you know whatever mindset and level of pressure is always be there, because there are lots of reputational risk, data risk, financial risk, and the most important thing for a your reputational and faith of your customers, right? क्योंकि अगर कुछ भी डेटा उनका लीक हो रहा है, कुछ भी ब्रीच हो जा रहा है, तो इट विल बी गोइंग टू गिव देम ए लॉट्स ऑफ जस्टिफिकेशंस एंड बहुत सारे लीगल टर्म्स रहता है, ठीक है? इंसिडेंट रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? हैविंग ए वेल डिफाइंड प्लान दैट आउटलाइन स्टेप्स टू टेक फॉर एनी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स ऑकर, राइट? हम लोग ऑलरेडी पॉलिसी प्रोसीजर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान होता है, तो उसको कैसे हम लोग पॉलिसी अगर डिफाइंड होगा, तो कैसे बाय प्रोसीजर इसको यू नो स्टेप बाय स्टेप रहेगा कि अगर कोई अटैक आता है तो व्हाट आर द मेजर थिंग्स वी नीड टू फॉलो, इंक्लूडिंग रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अभी दोनों को फोकस करते हैं। तो अभी जैसे मेरा L1 को पता चलता है कोई अगर साइबर अटैक हो रहा है, हिट हो रहा है, ठीक है? तो वो कैसे L2 को रेस्पॉन्ड करेगा या L3 को रेस्पॉन्ड करेगा या कैसे ब्लैकलिस्ट करेगा, ठीक है? टू द अनऑथराइज यूजर्स और अनऑथराइज अटैकर्स, या जो भी अनवांटेड एक्टिविटी हो रहा है। सो आपका रिएक्टिव मेजर्स वही होता है कि जब एक बार अटैक हो जाता है, तब आपका रिएक्टिव मेजर्स का प्लान आता है, ठीक है? फॉरेंसिस एनालिसिस होता है, अटैक हो गया तो इन्वेस्टिगेट होता है, फॉरेंसिस टीम आते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉरेंसिस यदि द फॉरेंसिस टीम, दे हिज नेम इज रमन, ठीक है? सो वंस अटैक इज हैपनिंग, ही जस्ट वेंट देयर एंड स्टार्ट फॉर डूइंग हिज एनालिसिस, इन्वेस्टिंग द इंसिडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन, कैसे घुसा, कहाँ से एक्सप्लोइट हुआ है, कौन कौन सा सर्वर कंप्रोमाइज हुआ है, एंड व्हाट सिस्टम्स वर अफेक्टेड, राइट? एंड व्हाट डाटा माइट हैव बीन कंप्रोमाइज, कितना डेटा इम्पैक्ट हुआ है, कौन कौन से सर्वर। लेट सपोज कोई अगर स्केजियाटिक से कोई ब्लड सर्वर है, उसमें जोन मान लीजिए 6 लोकेशन है, एक लोकेशन कंप्रोमाइज हो गया, इफ यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि इतना डेटा जा चुका है। नाउ डेज लेटेस्ट cyber week is happening. I'm not going to disclose the client name, but बहुत सारे ransomware attack हो रहे हैं, right? Your data will be going to encrypt, right? And it is simply they can ask for a money, certain amount of money they are asking, and if you are not provide to them, then your data will be going, means your value will be already hidden by them, and you are not able to access the data in any of the future perspective, right? So consentment and
प्रायोरिटाइजेशन तो कैसे होता है, टेकिंग इमीडिएट एक्शंस टू आइसोलेट अफेक्टेड सिस्टम, ठीक है, रिमूव मेलिशियस एलिमेंट्स एंड प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ द। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आइसोलेशन लास्ट टाइम हम लोग क्या था कि अगर आप लेट्स सपोज 10 विलेन है तो उसको क्या करते हो, अगर एक विलन में सेम सिस्टम में उसको आप अलग विलन से करते हो या फिर फिजिकली आप जाके केबल ब्लॉक कर देते हो, तो कुछ भी आप करते हो बट आइसोलेट कर देते हो। आपका जो लाइफ एनवायरमेंट प्रोडक्शन एनवायरमेंट नेटवर्क रहता है या आपका जहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है, तो आप उसमें इसको ऐड नहीं करते हो। इफ़ यू फाउंड कि वो अगर ब्रीच हुआ है, देन कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन इन्फॉर्मिंग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स एम्प्लॉई एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट द इंसिडेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट। ये होता है आपका रिएक्टिव मेजर्स, बिकॉज ऑलरेडी एक अटैक हो चुका है और अटैक होने के बाद क्या क्या चीज़ें हम लोग को फॉलो करना है। सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर थ्रेड मॉडलिंग। जब आपका डेवलपमेंट लेवल पे रहता है तो अटैक ना हो क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे रखना पड़ता है, या फिर जब अटैक नहीं भी हो रहा है अगर आप लाइव भी कर देते हो इसको, डेवलपमेंट डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं, बट अगर लाइव भी कर देते हो तो एक होता है ना कि आप डेली वाइज लेवल पे क्या क्या चीज़ें फोकस करो। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गया, कोड प्रैक्टिसेस हो गया, रिव्यू हो गया, ये आपका ऑलरेडी होप यू रिमेंबर हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे, राइट। आपका जब भी आप स्ट्रेटेजिकल प्लान टैक्टिकल प्लान रहता है ना, स्टैटिक टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, तो ये आपका ऑपरेशनल प्लान में आता है, ठीक है। तो डेली वाइज लेवल पे आप क्या क्या काम कर रहे हो टू प्रिवेंट द अटैक, और अगर अटैक हो जाता है तो हाउ रिएक्टिव नो मेजर्स विल बी फॉल्स, एंड क्या क्या उसमें हम लोग कम इन टू द पिक्चर एंड हाउ इट इज गिव यू क्लैरिटी टू रेस्पॉन्ड टू द हैपेंड अटैक, ठीक है। डेटा रिकवरी एंड रिस्टोरेशन क्या होता है, रिस्टोरिंग लॉस्ट ऑफ लॉट्स और कंप्रोमाइज डेटा फ्रॉम बैकअप एंड रिस्टोरिंग सिस्टम्स टू नॉर्मल। फॉर एग्जांपल आपका, फॉर एग्जांपल नेस सर्वर है, ठीक है। नेस में आपका नेस में आप डेटा स्टोर कर रहे हो, आपका सेट ड्राइव है, नेस में नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज है, तो इसमें आप डेटा शेयर कर रहे हो तो आपका ये रिडंडेंट है या कुछ भी है, या फिर आप आइसोलेट करके डेटा डेली बेसिस पे आप बैकअप करके डालते हो, ठीक है। कम्बोल टूल हो गया या बहुत सारे टूल से यूटिलाइज होता है टू टेक द बैकअप, ठीक है। तो एक अगर मान लीजिए ये डेटाबेस आपको कंप्रोमाइज हो गया, इवन जस्ट लेट सपोज आप अगर रिमूव कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो यू मेक श्योर कि आपका बिजनेस इंपैक्ट ना हो, दैट्स द रीजन यू हैव ए डिफरेंट बैकअप, राइट। तो आप इसके थ्रू से कैसे आप इसको रिकवरी कर पा रहे हो डेटा, या कैसे फिर इसको नॉर्मल सिस्टम पे लाइव कर रहे हो, ठीक है, सो दैट योर कस्टमर विल बी नॉट बी impacted, right? Lesson learned. So analyzing the incident to identify vulnerabilities, weaknesses, and areas of improvement, and using this knowledge, this knowledge to enhance future security measures. ठीक है, let's discuss with the real time scenario again to understand the both little bit more detail. तो ये आपका एक बैंक है, बैंक का नाम है ACDN, ACDN बैंक, ठीक है, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको आप ऐसे सोचो, ये आपका फॉर एग्जांपल इनवॉइसिंग टीम है, ठीक है, ये आपका कैशियर है, ये आपका फॉर एग्जांपल जो आपका इंश्योरेंस वगैरह जो भी है ये डिपार्टमेंट है, ये आपका कुछ पॉलिसी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू नो व्हाट इज द बैंक रूल्स, लेट्स डिस्कस हाउ इट इज वर्क, ठीक है। तो प्रोएक्टिव मेजर्स, तो इमेजिंग यूर साइबर एक्सपर्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हियर हाउ द प्रोएक्टिव मेजर्स वर्क इन द कंटेंट, ठीक है। तो अभी क्या है, रमन जो मैंने बोला था ना वहाँ पे साइबर अटैक हुआ है एंड रमन विल बी गोइंग टू देयर, एंड Raman is there, he reached here and he just evaluating before the attack and उससे पहले क्या क्या हुआ है to implementing the proactive measures and reactive measures, ठीक है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स तो क्या होता है, एवरी क्वार्टर योर टीम कंडक्ट comprehensive security audits और the banks online banking systems, you look for vulnerability in software code and network infrastructure. During one of these audits, you discover a potential weakness in the logging systems that could allow unauthorized access, ठीक है। तो आप क्या कि जब भी आप प्रोडक्टिव, अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, कभी भी हम लोग प्लान डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्ट्रैटेजी, ये आपका होता है टेक्टिकल, एक होता है आपका ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल डेली वाइज पे काम होता है आपका, ये होता है कि जैसे स्ट्रैटेजिकल है कि आप एक साल में 2 बार ऑडिट करो, तो आप इसको ये करो, बट आप बोल रहे हो कि इसको रीच करने के लिए टैक्टिकल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। तो आप बोलते हो यार ठीक है, मैं एक साल में 6 महीने में इतना इतना काम करूँगा, 6 महीने में
असेसमेंट करूँगा 6 महीने में इनका सारे इम्प्लीमेंट करके रिपोर्ट दूँ। तो टू रीच आउट दैट आपका ऑपरेशनल, तो यहाँ पे क्या होता है, डेली जब हुआ ये फाउंड दैट कुछ वीकनेसेस है जहाँ पे आपको अनऑथराइज एक्सेस के लिए अलाउ कर रहे हैं, कुछ वल्नरेबिलिटी है। तो रिजल्ट क्या होगा, by identifying and addressing this vulnerability proactively, you prevent potential hacker from exploiting the faults to gain unauthorized access to customer account. This safeguards sensitive financial data and maintains customer trust. ठीक है। तो आप अगर जब भी आप कोई एप्लीकेशन लाइव है, जैसे मैंने बोला था डेवलपमेंट पे हो या लाइव पे हो, तो आप कुछ भी अगर मिल रहा है ना, यू आर प्रोएक्टिवली फिक्सिंग दिस फाइंडिंग। ठीक है। आप उस थ्रेड को आप हाईलाइट कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, उसको आप एस्केलेट कर रहे हो टू द अदर टीम या अदर वेंडर टू mitigate the such kind of unwanted or unauthorized access or attacks. ठीक है। सिनारियो क्या होता है थ्रेड मॉडलिंग में, you decide to perform a threat modeling exercise for a new mobile banking app is launching. ठीक है। Through this process you identify potential threat like account hijacking and data इंटरसेप्शन। ठीक है। तो ये आप अभी मैं आपको बताऊंगा हाईजैकिंग क्या होता है, इंटरसेप्शन क्या होता है, MIMT क्या होता है, डॉस डीडॉस, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। आप खाली फोकस करो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव पे। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग यट बाय फोर्सिंग दिस थ्रेट एंड incorporating the security controls such as strong authentication mechanism and encryptions, you enhance the app security before and real attack can occur। ठीक है। रिएक्टिव मेजर आप तो आप ये क्या कर रहे हो, आप अटैक ना होने से पहले यू आर फोकसिंग कि हाँ ये चीज़ें मैं इम्प्लीट करूँगा तो मेरा ये चीज़ें थोड़ा सिक्योर रहेगा। ठीक है। डिफेंस इन डेप्थ कर रहे हो। होप यू रिमेंबर गाइस व्हाट इज डिफेंस इन डेप्थ। ठीक है। कैसे क्या लेयर में आपको सिक्योरिटी आप दे रहे हो, तो आप समझ लो कि बिफोर ये आपको ना लेयर आप बना रहे हो कि हाँ ये चीज़ें मेरे को करना भी है और बिफोर एनी अटैक इज हैपनिंग। ठीक है। सो रिएक्टिव मेजर्स कैसे काम करता है, incident response। So one day you receive an alert suspicious activity occurring in the bank पेमेंट गेटवे पे है, मान लो कुछ पैसा ट्रांजेक्शन लगा के रखा है जो पेमेंट गेटवे है। तो वहाँ पे कुछ आपको सस्पिशियस फील होता है। ठीक है। सस्पिशियस फील होता है, एक्टिविटी कुछ अनवांटेड एक्टिविटी हो रहा है। सो यू क्विकली assemble the incident response team to according to the predefined incident response plan। तो आप जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए हो ना पहले से, आप उनको हाईलाइट करते हो कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, यू नीड टू फॉलो रिजल्ट। योर टीम इन्वेस्टिगेट्स द इंसिडेंट, डिटरमाइंस दैट इट्स ए डिस्टर्ब डिनाल ऑफ सर्विसेज अटैक हो रहा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाल ऑफ सर्विसेज अटैक हो रहा है एंड इम्प्लीमेंट्स अंडर implements countermeasures to mitigate the attacks impact। ठीक है। द बैंक ऑनलाइन सर्विस रिमेन्स अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स। ठीक है। तो उसको जब उनको पता चल गया कि ये हो रहा है, दे कैन लेट्स सपोज disable the IP or they have a proper DDoS solutions in the environment। तो उसको अगर कहीं पे कुछ properly implement नहीं हो रहा है या something like that, so they can simply highlight the team and they can block the DDoS attack। ठीक है। सिनेरियो कैसे होता है, तो forensic analysis पे, तो during a routine check you notice unusual data transfer from a employee workstations, you suspected potential data breach। एक बार और डिस्कस करते हैं सिनेरियो। तो रियल क्या होता है, through digital forensics you determine that employee employee inadvertently downloaded malware from a phishing emails। ठीक है। तो अनजाने में उसने क्या किया, phishing email डाउनलोड किया था and you isolate the workstations, remove to the malware and access to extended of the breaches preventing further data loss। ठीक है। तो आप क्या किए, उसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है। कम्युनिकेशन से नोटिफिकेशन कहता है यू डिस्कवर दैट कस्टमर डेटा इंक्लूडिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाज compromised ड्यू टू द साइबर अटैक। कैसे हुआ था कि अनजाने में, ठीक है, ही जस्ट click on the phishing email or download the malware and it's something is happening। ठीक है। it's crucial to communicate to this affected customer promptly। result, the bank notifies affected customers about the breaches, provide guidance on safeguarding their accounts and offer identity protection services। ठीक है। this transparent कम्युनिकेशन हेल्प्स मिटिगेट पोटेंशियल डैमेज एंड मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट। ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि किसी को डेफिनेटली आप ट्रांसपेरेंट रख रहे हो, सिंक में रख रहे हो कि नहीं ये अटैक हुआ है एंड वी हैव ए प्रॉपर प्लान इन प्लेस एंड वी हैव ऑलरेडी जो जो आप स्टेप्स लिए हो, यू कैन जस्ट इफ रिक्वायर्ड जो जो आपको, बिकॉज सारी चीज़ हम लोग कोई भी क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ
the same situation because आपको पता है कि वो पैनिक रहता है because they are data is most that where we are majorly focusing for the CIA right. इसको आप मेंटेन करने के लिए हम लोग we have invested millions of trillions of amount the industries. So आपका अगर डेटा ब्रीच हो रहा है तो your everything will be gone. ठीक है. So that is the reason the reactive measures works. ठीक है. In essence proactive measures involve anticipating and preventing cyber risk. ठीक है, preventing cyber risks, while reactive measures focus on responding and mitigating the impact of an incident that have already occurred. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लैरिटी ले लो कि जो आपका सॉरी प्रोएक्टिव मेजर्स होता है आपका बिफोर एनी अटैक और डेवऑप्स लेवल पे हम लोग मेजरली फोकस करते हैं, या लाइव भी है तो अटैक नहीं हुआ है तो हम लोग क्या क्या फोकस कर रहे हैं टू मिटिगेट द अटैक. ठीक है, बट एक बार अटैक हो गया, साइबर अटैक हो गया या कुछ भी इशूज हो रहा है, देन आपका रिएक्टिव मेजर्स कैसे काम कर टू रेस्पॉन्ड दैट पर्टिकुलर थ्रेट. ठीक है, this is not only responding and blocking to the attacker और उसको defend करने का नहीं होता है. when we talking about the responding it is including your leadership team, you know it is your client, it is your internal teams, and how we can more take precautions and effectiveness to reduce the threat. ठीक है, a comprehensive cyber security strategy incorporates with both approach to create robust defense against cyber threat. ठीक है, so uh, we have today covered the in threat in modeling, we have covered the proactive measures and reactive measures. Next video will be discuss the goal and what is your stride model and what is pasta. Okay, so we'll discuss in our upcoming videos. Okay, thank you so much guys, take care and let me know if you have any feedback, then just mention in the comments. I will try to incorporate it. Thank you.